Is my screen visible? Am I audible to everyone? Prathamesh, Shaurya, Shivani. Yes, sir. Okay. Okay, so in the last session of our pharmaceutical organic chemistry, we had seen some rearrangement or name reactions. Like first 17 we have already completed. So I will just enlist out which 17 we have completed and then we'll move forward. Okay. So the first one that we saw was aldol condensation reaction. Okay, condensation reaction that we had seen. Then we had saw the Bridge reduction reaction, Beckmann rearrangement reaction. Okay, next we have Beckmann rearrangement. Next we have Bal-Schmidt reaction. Next we have seen Clemmensen. So in the last lecture we had seen few of the reactions. वही हम देख रहे हैं. Clemmensen reduction reaction, Korehouse synthesis, Cope elimination, carbylamine reaction, Claisen-Schmidt reaction, Canizores reaction, Claisen condensation reaction, Curtius rearrangement, Diels-Alder reaction, Ittard reaction, Frankland reaction, Frankliston reaction, and Friedel-Crafts reaction. First 17 reactions we had seen in the previous lecture. In the today's session, we'll be seeing furthermore name or rearrangement reactions. Like now, first we'll be seeing the Fries rearrangement reaction, the 18th one. Okay, Fries rearrangement reaction. This reaction has been asked in GPAT, NIPER, Drug Inspector, and Pharmacist exams previously. So, what is the reaction? We'll see the statement: phenyl esters on heating with anhydrous AlCl3. Phenyl esters, okay, esters are involved here. On heating with anhydrous aluminum trichloride undergoes Fries rearrangement, in which acyl group, acetyl benzoyl, etc., migrates from phenolic oxygen to orthopara position of benzene ring, resulting in uh, the formation of mixture of ortho and para hydroxy ketone. See what is happening. We have a phenyl benzoate, a phenyl ester. When we are heating this with anhydrous aluminum trichloride, what is happening? The acyl group, that is acetyl or benzoyl group, okay, that is migrating from the phenolic group to ortho and para position. Okay, so the acyl group is migrating to the ortho as well as para position. Okay, and because of this we are getting ortho and para hydroxy ketone. So you can see here we have phenyl benzoate, then the acetyl or benzoyl group. Okay, this group CO C6Hy is going on ortho and para position, and we are getting orthohydroxybenzophenone and parahydroxybenzophenone. I hope this is clear. Next is Gabriel thalidomide synthesis. So this thalidomide synthesis is like in which thalidomide is involved, and we are getting phthalic acid. So thalidomide on reaction with caustic potash forms potassium thalidomide. Okay, thalidomide on reaction with caustic potash, that is KOH in water. Okay, forms potassium thalidomide. See, potassium K is involved in your thalidomide. Okay, which on treatment with alkyl halide gives an alkyl thalidomide. Now, when we are treating this with an alkyl halide, see here we have alkyl halide C2H5I. Okay, the potassium is removed away with the alkyl group with the halide group which is available in our alkyl halide. Okay, and it gives an alkyl thalidomide, and we are getting an alkyl thalidomide means the nitrogen is substituted now with the alkyl group. Okay, the n alkyl thalidomide on hydrolysis with hydrochloric acid yields primary amine. Now this we are what it is undergoing, it's undergoing hydrolysis with hydrochloric acid. So the H plus ion is shown for the hydrochloric acid, which would be yielding primary amine. So you can see we are getting a primary amine.
I hope this reaction is clear to everyone. Thalidomide on reaction with caustic potash, that is potassium hydroxide, we are getting potassium thalidomide. Now this potassium we need to replace with alkyl group, so we are using alkyl halide. Then the halide group is taking away the potassium and the alkyl group is retained. This alkyl group containing thalidomide on hydrolysis with hydrochloric acid will be yielding primary amine. So the final product of the reaction would be primary amine. Okay. सी, जब भी आप ये रिएक्शंस के लिए स्टडी करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल, एंड प्रोडक्ट और उसके कैटेलिस्ट क्या है. उसके इन बिटवीन स्टेप्स भी अगर आपको याद नहीं रहे तो चलेगा. जीपैट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एक रीअरेंजमेंट और नेम रिएक्शन के लिए. एक तो उसका नाम, ओके, उसका बेसिक मैकेनिज्म, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, उसका एंड कंपाउंड क्या है, और उसमें अगर कोई स्पेसिफिक कैटेलिस्ट है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, तो वो इन बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेप्स में क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, इतना डिटेल में जीपैड में नहीं पूछा जाता. स्टार्टिंग मटेरियल, एंड प्रोडक्ट, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड नेम ऑफ द रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट हम देख रहे हैं 20 नंबर का रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन. सो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो. बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिक्सचर ऑफ CO and HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉर्म्स बेंजाल्डिहाइड. देखो बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हमारा क्या कैटेलिस्ट यहाँ पे AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एंड व्हाट वी आर गेटिंग बेंजाल्डिहाइड. सो बेंजीन का अल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए गेटमैन कोच रिएक्शन कैन बी यूज्ड. ओके. नेम जो है बहुत ही क्रिटिकल या बहुत ही टफ ऐसे लग रहा है, बट जब आप रिएक्शन देखो तो वो तो बहुत इजी वाले रिएक्शन है, जिसमें डायरेक्ट सब मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम ज्वाइन करेंगे और हमारा फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा. ओके. सो बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड विथ गेटरमैन कोच रिएक्शन अंडर द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. दिस इज important here. Starting material, end product, and the catalyst. Next is hydroboration oxidation reaction. Hydroboration oxidation reaction, reaction number 21. Alkenes react with diborane to give alkyl boranes, which on oxidation with hydrogen peroxide in presence of hydroxide forms alcohol. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अल्कीन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, डाइबोरेन के साथ, टू गिव अल्काइल बोरेन्स which on oxidation with hydrogen peroxide in the presence of hydroxide forms alcohol. अब हम रिएक्शन देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा. सी, just a minute. I will just project the screen likewise कि we can see the sentence as well as the reaction. Yeah, okay. तो अब देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है. अल्कीन यहाँ पे है, react with diborane. Okay, alkyl is reacting with diborane B2H6 to give alkyl boranes. So we are getting alkyl boranes which on oxidation with hydrogen peroxide, okay, like these alkyl boranes further are reacting here. These are the reacting steps. Trialkyl borane हमें मिल गया. ये trialkyl borane is further treated with hydrogen peroxide H2O2 in the presence of hydroxide. Okay, OH group is also present. What we are getting, we are getting alcohol and boric acid. तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें अल्कोहल और बोरिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है फ्रॉम अल्कीन विच आर रिएक्टेड विद डायबोरेन्स. दिस डायबोरेन्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू अल्किल बोरेन्स. ये अल्किल बोरेन्स जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, वी आर गेटिंग अल्कोहल एंड बोरिक एसिड एज द फाइनल प्रोडक्ट. Next, moving further to the next reaction, that is Hans-Dicker reaction. Okay,
देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, आप ना ही आपको स्पेलिंग पूछा जाएगा एग्जाम में, ना ही उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो हंस डिकर, हैंस डिकर, जो बोलना है आप बोलो, वो मैटर नहीं करता, बस आपको रिएक्शन में क्या हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे हैं हंस डाइकर रिएक्शन। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with bromine in refluxing CCl4 to yield alkyl bromide with one carbon atom less than the original acid used। देखो क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमारे पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ। ओके, ब्रोमीन जो एलिमेंटल ब्रोमीन है Br2, उसको हम किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COH की जगह क्या है, Ag, मतलब सिल्वर अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन रिफ्लक्सिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ, इसको रिफ्लक्स किया जा रहा है, CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, टू ईल्ड अल्किल ब्रोमाइड, हमें क्या मिलेगा, अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा विथ वन कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल एसिड यूज। तो अब यहाँ पे अगर दो कार्बन एटम वाला, तीन कार्बन एटम वाला एसिड है, तो यहाँ पे दो कार्बन एटम वाला हमें क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड रिलीज हो रहा है इस एग्जांपल में। ओके, हंस डाइकर रिएक्शन में क्या होता है, तो हंस डाइकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करके हमें अल्किल हैलाइड मिलता है, लाइक अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, but the carbon is one carbon atom less. The next reaction, reaction number 23, okay, that is Hoffman mustard oil reaction. Reaction number 23, we are seeing Hoffman mustard oil reaction. The reaction is given by aliphatic and aromatic primary amines only. ये रिएक्शन कौन कौन दिखा सकते हैं, सिर्फ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। तो अगर आपको टेस्ट करना है कि ये चीज क्या है, इसमें प्राइमरी अमाइंस हैं प्रेजेंट है कि नहीं, तो यू कैन यूज दिस टेस्ट एज अ confirmatory test to identify unknown compound if you are guessing they are primary amines. Okay, so what is the Hoffman mustard oil reaction? Alkyl isothiocyanates, yes, who's this, okay, alkyl isothiocyanates have a characteristic unpleasant smell of mustard oil, hence the reaction is known as Hoffman mustard oil reaction। तो वो वाला चीज यहाँ पे दिया गया है। आप देखो यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी अमाइन, प्रियंका प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे, हॉफमन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन वी आर सीइंग, इसमें हमने प्राइमरी अमाइन लिया, वी हैव कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ओके, विच इज रिएक्टिंग with this primary amine, okay, and we are getting alkyl isothiocyanate, okay, this is alkyl isothiocyanate NCS, thiocyanate group is here, HGS and 2HCl is released. This isothiocyanate has unpleasant smell of mustard oil, so this reaction is called as Hoffman mustard oil reaction। isothiocyanate जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी मस्टर्ड ऑयल जैसे अनप्लीजेंट स्मेल होता है। सिमिलरली हॉफमन रिएक्शन जो है, इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी अमाइंस का अल्किल आइसोथायोसाइनेट फॉर्म हो रहा है और वैसी स्मेल आ रही है इस रिएक्शन में से, इसलिए क्या है, इस रिएक्शन का नाम ही हॉफमन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ऐसे दिया गया है। द नेक्स्ट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, रिएक्शन नंबर 24 वी आर सीइंग, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। Methyl ketones on oxidation with sodium hypohalite, methyl ketone, okay, on oxidation with sodium hypohalite NaOXi or NaOH, X group is attached, okay, yield haloform along with sodium salt of carboxylic acid with one carbon atom less than the starting ketone। देखो क्या किया है इस रिएक्शन में, मिथिल कीटोन है, उसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम हाइपोहलाइट,
सोडियम हाइपोलाइट कैसे बन रहा है, NaOX है, मतलब जैसे कि NaOH की जगह पे H की जगह पे X ग्रुप अटैच है और हम उसको सोडियम हाइपोलाइट बोलेंगे. Yield halo form along with sodium salt of carboxylic acid with one carbon atom less than the starting ketone. देखो पहले इन्होंने क्या किया है, RCCH3 और आयोडीन ग्रुप और NaOH इनको रिएक्ट करके क्या बनाया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ आपका सोडियम हाइपोहेलाइड बनाया है. ओके, फर्स्ट इसमें, और इसको ट्रीट करके आपको क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम, हाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये देखो ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका हो गया सोडियम हाइपोहेलाइट. ओके, this is your haloform reaction. Am I audible to everyone? Yes, sir. The next reaction is Hell-Vollard-Zelinsky reaction. Okay, next is Hell-Vollard-Zelinsky reaction, that is HVZ reaction, which involves halogenation of compounds. Aliphatic carboxylic acid on reaction with bromine or chlorine in presence of small amount of red phosphorus produce alpha halo acids. देखो क्या है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि CH3CH2COH यहाँ पे लिया गया है प्रोपियोनिक एसिड. ओके, दीज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन और क्लोरीन. ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस है या HCl है, सॉरी क्लोरीन गैस है या ब्रोमीन, liquid bromine you can use in this reaction. Okay, in the presence of small amount of red phosphorus. रेड फॉस्फोरस देखो RED रेड P से डिनोट किया गया है एरो के ऊपर यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस है, रेड रेड फॉस्फोरस है. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा हेलो एसिड मिलेंगे, मतलब उस एसिड पर एक हेलोजन ग्रुप अटैच होगा अल्फा पोजीशन पे. ओके, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, कौन सा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको हमने कौन से किसी एक हेलोजन से ट्रीट किया, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लोरीन से ट्रीट किया है अंडर द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. HCl बाहर निकल रहा है इस रिएक्शन में से और हमें मिल रहा है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, अल्फा पोजीशन पे क्लोरो है. सिमिलरली फर्दर इफ वी आर ट्रीटिंग, ये रिएक्शन आगे जा रही है तो 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड मिलेगा. मतलब क्या है, अल्फा पोजीशन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे दोनों क्लोरीन ग्रुप आ जाएंगे. ठीक है, बट ओनली इट विल गिव अल्फा पोजीशन हेलो एसिड्स. ओके, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन. The next reaction is Hoffman-Bromenamide reaction. Hoffman-Bromenamide reaction, primary amides on reaction with bromine in presence of an alkali yield primary amine with one carbon atom less than the parent amide. देखो हॉफमन ब्रोमेनामाइड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि प्राइमरी अमाइड है जो रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है रिएक्शन, reaction with bromine in presence of alkali yield primary amine with one carbon atom less than the parent carbon. ओके, चलो हम रिएक्शन देखते हैं, मतलब आपको और भी क्लियर हो जाएगा. लेट मी क्लियर ऑल माय एनोटेशंस. ओके, देखो हॉफमन ब्रोमाडामाइड रिएक्शन देख रहे हैं हम, रिएक्शन नंबर 26. प्राइमरी अमाइड जैसे कि RCONH2 यहाँ पे लिया है, 1 डिग्री अमाइड लिया है ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली ली है. ओके, ईल्ड प्राइमरी अमाइन, क्या ईल्ड करेंगे, प्राइमरी अमाइन ईल्ड होगा. ओके, अमाइड से अमाइन बन रहा है. ओके, विथ वन कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट अमाइड. इसमें अगर 2 कार्बन है तो इसमें 1 कार्बन बनेगा. देखो RCONH2 था तो यहाँ पे RNH2. अगर ये R ग्रुप CH3CH2CONH2 है तो यहाँ पे CH3CH2NH2 बनेगा, 1 कार्बन एटम यहाँ पे कम होगा. ओके, 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है हमें यहाँ पे. फिर 2 kBr, K2CO3 NH2 आर द अदर बाय प्रोडक्ट्स. आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू एवरीवन.
The next is novella gel reaction. Okay, so novella gel reaction, what is the reaction? We'll see reaction number 27. In this reaction, aldehyde and ketone condense with compounds containing active methylene group like acid, example malonic acid, ester, acetoacetic ester, malonic ester, or nitrile, etc., leading to the formation of alpha beta unsaturated compound. Okay, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अल्डिहाइड और कीटोन, ओके, अल्डिहाइड या कीटोन कंडेंस विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलिन ग्रुप. यहाँ पे हमने अल्डिहाइड लिया है, ये किस कंपाउंड के साथ कंडेंस हो रहा है? जिसमें एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है, जैसे कि मेलोनिक एसिड हो गया, या ईस्टर्स जैसे कि एसिटोएसिटिक ईस्टर, मेलोनिक ईस्टर. तो यहाँ पे मेलोनिक एसिड लिया गया है जिसमें एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है. ओके, तो acetaldehyde will condense with malonic acid in the presence of pyridine. It is heated, heat is provided, okay, leading to formation of alpha beta unsaturated compound. So you can see we have a alpha beta unsaturated compound named as crotenoic acid. Carbon dioxide and water is released. Okay, so this is your reaction का नाम क्या था? रिएक्शन का नाम है novena gel reaction. Okay, the next reaction is Kolb electrolytic method. Okay, Kolb's electrolytic method जिसमें electrolysis involved है इस reaction में. reaction number 28 देख रहे हैं हम. Okay, Kolb's electrolytic method. In this method, a concentrated solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed to give higher alkanes. क्या हो रहा है इसमें? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका क्या हो रहा है? इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव हायर अल्केन. जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हमारे पास क्या है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे 2 पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. ओके, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और हमें अल्केन मिल रहे हैं. ओके, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के CO कार्बन डाइऑक्साइड से के जैसे होके वो रिलीज हो रहे हैं, H2 अलग हो रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो रहा है. तो कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या हो रहा है? एसिड टू अल्केन फॉर्म हो रहा है, ये वाली चीज है. तो हमारे जो है 28 रिएक्शन अभी तक कंप्लीट हुए हैं. The next reaction is Leucart reaction. Okay, Leucart reaction देखते हैं. Reaction number 29. An aldehyde or ketone on heating with ammonium formate or ammonium formamide undergoes reductive amination to form formyl derivative of primary amine, which on hydrolysis either with acid or base yields primary amine. देखो, एक अल्डिहाइड या कीटोन ऑन हीटिंग विद अमोनियम फॉर्मेट, ये है आपका अमोनियम फॉर्मेट, और अमोनियम फॉर्मेट अंडरगोस रिडक्टिव अमाइनेशन टू फॉर्म फॉर्मिल डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका रिडक्टिव अमाइनेशन हो रहा है और हमें फॉर्मिल डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन का फॉर्मिल डेरिवेटिव मिल रहा है, और इसके हाइड्रोलिसिस पे हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है, जो कि इस रिएक्शन में नहीं दिखाया गया, बट अगर आप इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा, RnH2. ओके, सो दिस इज योर ल्यूकार्ट रिएक्शन. ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं, अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया है जीपैट में या किसी और एग्जामिनेशन. The next reaction is Mervin-Pendorf-Verley reduction reaction. ये नाम आपने पहले भी सुना होगा इस रिएक्शन का. तो देखते हैं ये वाला रिएक्शन क्या है. Mervin-Pendorf-Verley reduction reaction. In this reaction, ketones are reduced to secondary alcohols on heating with isopropyl alcohol in presence of catalyst aluminum isopropoxide. देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, कीटोन्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं इनटू
सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे कि यहाँ पे हमने कीटोन लिया है, ओके, इट इज रिड्यूस्ड टू अ 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ऑन हीटिंग विद आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ हीट करेंगे हम कीटोन को, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड मेंशन है। इन द रिएक्शन आइसोप्रोपिल अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू एसीटोन। और क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ये जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होके इट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। मतलब कीटोन इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। ओके, मेरविन पेंडॉफ वेरले रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल रिडक्शन रिएक्शन करवा रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। रिएक्शन नंबर 30, the next reaction is ozone lysis reaction, reaction number 31, ozone lysis reaction. Ozone, on passing through a solution of alkene in an inert solvent like CCl4 or CCl3, CHCl3, at low temperature oxidizes to alkene to a cyclic product called ozonoid, which is unstable, and on reduction with reducing agents like zinc and water or hydrogen in presence of palladium gives aldehydes and or ketone depending upon structure of alkene, that is C double bond. Okay, पार्ट ऑफ द अल्किन गेट्स कन्वर्टेड टू सी डबल बॉन्ड ओ। देखो क्या है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे एक अल्किन है, उसके साथ ओजोन रिएक्ट हो रहा है, O3 मतलब ओजोन। ओजोन ऑन पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्किन, अल्किन के सॉल्यूशन में अगर हम ये ओजोन गैस पास कर रहे हैं, ओके, इन एन इनर्ट सॉल्वेंट यूटिलाइज है, जैसे कि CCl4 हो गया, CHCl3, टेम्परेचर लो है रिएक्शन का, अल्किन से एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। ओके, ये साइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं ओजोनाइड, और ये बहुत अनस्टेबल होने की वजह से ये आगे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ हम रिडक्शन करेंगे इस ओजोनाइड का विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक एंड वाटर और हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे जिंक और वाटर हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम gives aldehyde and or ketone depending upon the structure of alkene। तो अगर ये अल्किन का स्ट्रक्चर कैसे है, इसके बेसिस पे हमें यहाँ आइदर अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C होता है, वहां पे C डबल बॉन्ड O हो रहा है, मतलब अल्कीन टू कीटोन फॉर्म हो रहा है, जो रिएक्शन का नीचे एग्जांपल दी गया है उसमें। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओजोन लाइसिस रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ओजोन लाइसिस रिएक्शन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। देखो रिएक्शन नंबर 32 देख रहे हैं हम अब, ओपेनियर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, so what is this reaction, we'll see Oppenheimer's oxidation reaction. In this reaction secondary alcohols are oxidized to ketones in a good yield using aluminium tetrabutoxide in excess of acetone. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, एसीटोन के साथ रिएक्ट हो रहा है। ओके, एंड व्हाट दे आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन। ओके, तो ये सिमिलर रिएक्शन है जैसे अब हमने देखा था ऊपर रिएक्शन, उसका उल्टा रिएक्शन है ओपेनोस रिएक्शन, जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन के साथ रिएक्ट होके कीटोन और आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिल रहा है, एंड एल्यूमिनियम टेट्राब्यूटॉक्साइड इज द कैटलिस्ट, कीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो मैं ना पहले वाला ये ओपन कर रहा हूँ रिएक्शन, अभी जो हमने देखा था, जस्ट अ मिनट, तो मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, मेरविन पेंडॉफ वेरले रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन में कीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल रिएक्ट होके 2 डिग्री अल्कोहल एंड प्रोपेन 2ONe मतलब प्रोपेनॉल मिल रहा है हमें। ओके, और इसका ही उल्टा ये रिएक्शन है ओपेनोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें 2 डिग्री अल्कोहल एसीटोन रिएक्ट हो रहा है, कीटोन और आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिल रहा है। देखो कीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसमें इस साइड पे है, कीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड में है। 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेनॉन इस साइड है, 2 डिग्री अल्कोहल एसीटोन इस साइड से है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसी रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन ओपेनोस रिएक्शन है,
ओपेनोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस रिएक्शन का उल्टा है? मेरविन पेंडॉफ वेरले रिडक्शन रिएक्शन। ओके, वो रिडक्शन रिएक्शन है, ये उल्टा है इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओपेनियस रिएक्शन और मेरविन पेंडॉफ वेरले रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है और कैटेलिस्ट अलग है। यहाँ पे ओपेनर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्यूमिनियम टेट्राब्यूटॉक्साइड जो है वो यहाँ पे कैटेलिस्ट है, और मेरविन पेंडॉफ में क्या है, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जो है वो आपका यहाँ पे कैटेलिस्ट है। नेक्स्ट इज ऑक्सो प्रोसेस रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 33। Oxo process. In the process, an alkene on heating with water gets CO and H2O under pressure in the presence of catalyst cobalt carbonyl hydride COHCO4 yields aldehyde। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कीन है उसको किससे हीट कर रहे हैं, वाटर, ओके, और गैस का मिक्सचर है, हीटिंग विथ वाटर गैस दैट इज COH2, ये मिक्सचर के साथ हीट कर रहे हैं। कैटलिस्ट है कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर है। ये करने के बाद उस अल्कीन पे क्या हो रहा है, तो अल्डिहाइड ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप वो आ रहा है CHO। तो मतलब अल्कीन से अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है किस प्रोसेस से, तो ऑक्सो प्रोसेस से। ओके, ऑक्सो प्रोसेस से क्या बन रहा है, तो अल्डिहाइड से अल्कीन से अल्डिहाइड बन रहा है इस रिएक्शन में। द नेक्स्ट रिएक्शन इज पर्किन कंडेंसेशन reaction. It is a condensation reaction in which an aromatic aldehyde condenses with aliphatic acid anhydride in presence of sodium salt of same acid to give a condensate which upon hydrolysis yields alpha beta unsaturated acid। देखो वन बाय हम रिएक्शन देखेंगे वन बाय वन तो और भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो देखो रिएक्शन जो हम देख रहे हैं 34, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। Perkin condensation reaction. It is a condensation reaction in which an aromatic aldehyde, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है benzaldehyde, benzaldehyde is a aromatic aldehyde, condenses with aliphatic acid। ओके, तो यहाँ पे किसके साथ वो कंडेंस हो रहा है, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया है, एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम एसिड। इसी सेम एसिड का सोडियम सॉल्ट हमने लिया है CH3CONA। ओके, एसिटिक एसिड का ही हमने सोडियम सॉल्ट लिया है। टू गिव अ कंडेंसेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो हमें कंडेंसेट मिल रहा है, एक इंटरमीडिएट मिल रहा है जिसका हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो हमें मिल रहा है एसिटिक एसिड एंड सिनेमिक एसिड, जो सिनेमिक एसिड है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। ओके, तो अल्डिहाइड से एसिड कन्वर्ट हो रहा है इन द रिएक्शन दैट इज पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। जो एसिड मिल रहा है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। आई होप दिस इज क्लियर। रिएक्शन नंबर 34 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। क्लियर है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या सर? अब हेलो, आ रहा है आपका, मेरा आ रहा है आवाज आपको? यस सर, यस ओके, ठीक है, समझ रहा है आपको? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो दैट इज रिमर टिमन रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने 11th-12th में भी पढ़ी होगी ये रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। दैट इज रिमर टिमन रिएक्शन। Concentrated solution of CHCl3 reacts with phenol in presence of alcoholic potassium hydroxide, okay, to yield salicylic aldehyde। देखो फिनॉल है हमारे पास, CHCl3 के साथ रिएक्ट करना है फिनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट प्रोवाइडेड है, डाइल्यूट HCl भी है, हमें मिल रहा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो फिनॉल से अल्डिहाइड बन रहा है रिएक्शन में, दैट इज रिमर टिमर रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन, फिनॉल टू अल्डिहाइड, ओके,
2-hydroxybenzaldehyde we are getting. The next reaction is Reformatsky reaction. It involves let me open the reaction as well, तो आपको और इजी जाएगा समझने में. चलो हम क्या करते हैं ना, ये जो इसका वर्डिंग्स है ये भी नीचे ले लेते हैं तो एक ही पेज पे दिखेगा. ओके, तो रिएक्शन नंबर 36 देखो, Reformatsky reaction. It involves the reaction of zinc and a halogenated ester. यहाँ पे क्या है, जिंक का रिएक्शन है विद द अल्फा हेलोजेनेटेड ईस्टर विच add to carbonyl compound to yield beta hydroxy ester. तो यहाँ पे क्या है, जिंक रिएक्ट हो रहा है हेलोजेनेटेड ईस्टर से. यहाँ हमारे पास हेलोजेनेटेड ईस्टर है, इसके साथ जिंक रिएक्ट हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास एक कीटोन भी है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है जिसका बाद में क्या बन रहा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर. मतलब क्या, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला ईस्टर COO फंक्शनल ग्रुप होने वाला कंपाउंड मिल रहा है. किससे हमें, अल्फा हेलोजेनेटेड ईस्टर से. यहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए अल्फा हेलोजेनेटेड ईस्टर है. जिंक रिएक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट मिल रहा है, फाइनल कंपाउंड ये है. फिर रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जिंक कैटलिस्ट है, स्टार्टिंग मटेरियल अल्फा हेलोजेनेटेड ईस्टर है एंड फाइनल प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर. मतलब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला ईस्टर है हमारे पास. नेक्स्ट इज रोजमर्ड्स रिडक्शन रिएक्शन. रोजमर्ड्स रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 37. Rosemert's reduction reaction. Okay, acid chlorides are reduced to aldehydes by palladized barium sulfate partially poisoned with sulfur or quinoline. COCl is reduced to CHO. देखो, एसिड क्लोराइड ग्रुप जो है COCl यहाँ पे, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है अल्डिहाइड ग्रुप को बाय पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट. यहाँ पे पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट जो है वो कैटलिस्ट है विद पार्शियली पॉइजन विद सल्फर और क्विनोलिन. यहाँ पे सल्फर और क्विनोलिन भी डाला है, हाइड्रोजन है क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस है. और ये क्या हो रहा है, तो एसिड क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड एंड HCl इज द बाय प्रोडक्ट. रोजमर्ड्स रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही इजी छोटी ऐसी रिएक्शन है. एसिड क्लोराइड का रिडक्शन होके अल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है. कैटलिस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटलिस्ट पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और क्विनोलोन. सल्फर एंड क्विनोलोन को ऐसे मतलब जैसे कि मतलब दीज आर पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो उन्होंने ऐसे लिखा है कि दीज आर कैटलिस्ट इज पार्शियली पॉइजन विथ सल्फर और क्विनोलोन. नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन नंबर 38. ओके, दैट इज सैंडमियर्स रिएक्शन. सैंडमियर्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इन दिस रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद CuX और HX एंड रिस्पेक्टिव हैलाइड इज फॉर्म. देखो, डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम मतलब N डबल बॉन्ड N है यहाँ पे, ठीक है, N डबल बॉन्ड NCl, ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट. ये रिएक्ट कर रहा है CuCl CuBr, ओके, HCl HBr के साथ और हमें रिस्पेक्टिव हैलाइड मिलेगा. मतलब ये जो है ये पूरा रिप्लेस होगा. यहाँ पे जो हैलाइड ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे Cl है, ये यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको ये वाला मिल गया हैलाइड एंड N2 इज रिलीज्ड सेपरेटली. सैंडमियर्स रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है. ये सैंडमियर रिएक्शन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स के अंदर आता है. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंडमियर्स रिएक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. Yes, sir. ओके, लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे आज का, दैट इज कॉटन बॉमन रिएक्शन.
Reaction number 39, Schotten-Baumann reaction. Benzylation of alcohol or phenol in presence of NaOH is called Schotten-Baumann reaction. मतलब क्या हो रहा है, बेंजोइलेशन हो रहा है किसका, अल्कोहल या फिनॉल का, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिनॉल है, बेंजोइल क्लोराइड है जिससे बेंजोइलेशन हम करने वाले हैं, NaOH कैटेलिस्ट है और हमें यहाँ पे मिलेगा फिनिल बेंजोएट. दिस इज कॉटन बॉमन रिएक्शन. ये आपने आपके प्रैक्टिकल्स में भी रिएक्शन परफॉर्म की होगी क्योंकि ये बैचलर्स के प्रैक्टिकल में बहुत बार रिपीट होने वाली रिएक्शन है. आप फिनॉल लेते हो, बेंजोइल क्लोराइड लेते हो, NaOH डालते हो, NaOH का सॉल्यूशन, और फिनिल बेंजोएट आप सिंथेसाइज करते हो उस रिएक्शन में. उस रिएक्शन का जो मेन मैकेनिज्म है, लाइक आपने प्रैक्टिकल में अगर लिखा होगा तो आपने लिखा होगा सिंथेसिस ऑफ फिनिल बेंजोएट फ्रॉम फिनॉल. ओके, तो उस रिएक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है स्कॉटन बॉमन रिएक्शन. ओके, जिसमें बेंजोइलेशन हो रहा है अल्कोहल या फिनॉल का NaOH की प्रेजेंस में. तो आई होप अभी तक जितने रिएक्शंस हुए हैं उतने आपको क्लियर है. वंस आई कंप्लीट दिस ऑल द रिएक्शंस, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा. ओके, और इसके साथ साथ जब हमारा लास्ट सेशन होगा इस रिएक्शंस का, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से रिएक्शन जस्ट एक बार रीड किया तो भी सफिशियंट है. ठीक है, तो हम वो भी रिएक्शन नंबर आपको मैं इसका बता दूंगा, तो दैट विल हेल्प यू टू know that which reactions are very important and which reactions are just we need to study or read it out. Okay. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, else we'll end the session.